Keep your video on. Okay, I done the question. Figure shows the distance time graph. Figure shows the distance time graph of of two trains which start moving which start moving simultaneously which start moving simultaneously means एक साथ स्टार्ट करते हैं मोशन अपना in the same direction in the same direction. Figure shows the distance time graph of two trains which start moving simultaneously means एक साथ in the same direction. From the graph, find from the graph find number one. Four questions size. Number one, how much ahead मतलब आगे how much ahead of A is B? How much ahead of A is B when the motion starts? When the motion starts. Number two, what is the speed of B? What is the speed of B? Third, when and where? When and where? Will A catch B? Will A catch B? Okay, last one, fourth. What is the difference between the speeds? What is the difference between speeds of A and B? The graph is this. One, two, three, four. One, two, three, four. Okay, this is time axis in hour. This is 50, 100, 150,
200. This is distance in kilometer. Distance in kilometer. This is time in hour. Draw the figure. This is graph for A and this is for B. Okay. Name these points P, Q, R, S, and this point is O. First, draw the figure. 1.5 किलोमीटर. अच्छा पहला वाला वो 50 किलोमीटर. कैसे 50 कैसे हो गया? $75. अच्छा, एक पहले का आंसर पहले देख लो. फर्स्ट का आंसर 50 तो नहीं है. हाँ, फर्स्ट का 100 होगा. ठीक ठीक. स्टार्टिंग में आप ए वाले से बी वाला कितना आगे. स्टार्टिंग मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग ये है 0 से ए वाला तो 0 पे खड़ा है, बी वाला 100 पे खड़ा है. मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 100. फर्स्ट का आंसर है 100 किलोमीटर, यानी बी वाला जो है ए वाले से 100 किलोमीटर आगे. दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी. स्पीड वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस या स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. कहीं किसी भी पॉइंट पे निकालना. अगर इस पॉइंट पे निकालने हो तो डिस्टेंस और अपॉन टाइम. इस पॉइंट पे निकालते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. तो निकाल लो आप. तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, यहाँ पे तो इसका अगर देखें, इसका व्हाट इज स्पीड ऑफ बी ना. बी के लिए है ना. तो इसकी बात करेंगे. तो दिस और अपॉन दिस कितना हो जाएगा. दिस डिस्टेंस इज व्हाट, बी के लिए बात कर रहे हैं, ये वाला होगा एंगल ना. दिस डिस्टेंस इज व्हाट 150 माइनस 100
upon this is 2, that is 50 upon 2, that is 25 किलोमीटर पर आवर। बाकी लोग 75 निकाले हैं, वो 150 अपॉन 2 कर दिए होंगे। दिस इज द स्पीड ऑफ ए। आपने ए की स्पीड कैलकुलेट कर ली, देख लो ए ये वाला ये है ना, ये वाला अगर लेंगे तो ये एंगल हो जाएगा, है ना। इसके लिए 150 अपॉन 2 यानी 75, दैट विल बी द स्पीड ऑफ ए। Here in the question, it is asking that find the speed of B. Okay, so speed of B is 25 and speed of A is 75. This is the right answer. Okay, now third. When and where will A catches B? आपको दिख रहा है यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जिसपे दोनों की पोजीशन सेम है और दोनों की टाइम सेम, यानी कि पोजीशन सेम होगी तभी कैच कर पाएगा कोई ऑब्जेक्ट। कोई पर्सन किसी पर्सन को जब कैच करता है तो दोनों की पोजीशन सेम होती है। एट दैट पॉइंट पोजीशंस एंड टाइम बोथ आर सेम, है ना। देखो अगर देखा जाए तो ए क्या करेगा, ए वाला है ना, क्या करेगा, कितना टाइम ले रहा है, कितने टाइम के बाद, यानी 2 आवर के बाद ये दोनों आपस में लिख लो। आफ्टर 2 आवर दे विल कैच and from 150 from the origin, 150 from the origin, where मतलब कहाँ, है ना। तो 150 किलोमीटर and 2 hours. When and where and where and when. Fourth one, what is the difference between the speeds? तो आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है, पहले आप वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ए कैलकुलेट करना है, that is 150 upon 275, and velocity of v you know very well, that is 25 kilometer per hour, and va minus vb difference is 75 minus 25, that is 50 kilometer per hour, sorry per hour. Help. Keep your video on. Done. अरे जल्दी करो, बहुत टाइम लगाते हैं। ओके okay, write down next question.
The velocity time graph of an object, the velocity time graph of an object of an object, the velocity time graph of an object moving along a straight line, moving along a straight line is moving along a straight line is as shown in figure, is as shown in figure. Find the net distance. Find the net distance covered by the object. Find the net distance covered by the object. Find the net distance covered by the object in the time interval, in the time interval between t equal to 0, between t equal to 0 to t equal to 10 seconds. T equal to 0 to t equal to 10 seconds. Also find t equal to 0 seconds to t equal to 10 seconds. Also find the displacement in the time in the time t equal to 0 to t equal to 10 seconds. T equal to, why is it not clear? Anyone who is getting clear audio and video? क्लियर होता, क्लियर तो है, क्लियर. Okay. Also find the displacement in time. Also find displacement in time t equal to 0 to t equal to 10 seconds. Okay. First of all, draw the figure. Two, 4, 6, 8, 10. Okay. This is 0, 10, 20, minus 10, minus 20. Velocity in meter per second. Okay.
दिस इज द ग्राफ. I said many times, keep your video on. Okay, then पहले का 120 आ रहा है, पहले का 160 आ रहा है, दूसरे का 120 आ रहा है. देखते हैं हम भी. देखो देखो इसको कैसे करें. 0 to 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड. पहली बात, इसमें ग्राफ जो दिया हुआ है आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ, एक पार्ट जो ग्राफ का है वो पॉसिबल नहीं, ये वाला यहाँ से आता है. लेकिन फिर भी क्वेश्चन में दिया है तो लेट कर लेते हैं कि लेट अस सपोज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये अपनी स्पीड को -20 से 10 तक कर देता है ना. वैसे तो 0 टाइम में अपनी स्पीड को -20 से 10 मीटर पर सेकेंड कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्राफ में दिया है ना. बात पहले क्लियर कर ले रहे हैं. इस तरह के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, लेकिन बुक में दिया हुआ, अपने मन से नहीं करता, बुक में दिया हुआ. तो ठीक है, मान लेते हैं कि हो रहा है, लेकिन लॉजिकल आपको होना. दूसरी बात कि अगर हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना, लिखा है ना, फाइंड द डिस्टेंस एंड आल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो पहले आपको डिस्टेंस कवर करनी है, तो बस एरिया अंडर कर, ये कर, फिर ये कर और ये कर, सबका एरिया अलग अलग निकाल लो. पहले इस वाले का एरिया, इसका एरिया निकालो, है ना. या फिर इसका पूरे का निकालेंगे, कैसे हो जाएगा. इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, या इसका अलग निकाल लो, या फिर
फार्मूला होता है ना सिर्फ इतने का निकालने के लिए, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कितना देगा ये 60 मीटर। फिर इसकी बात करें तो एरिया कितना होगा 1/2 इंटू बेस, बेस इज व्हाट 2 इंटू हाइट इज व्हाट इट इज 20, है ना 20 मीटर। फिर इसका जानते हो ना कितना हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 20 मीटर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये पॉजिटिव एरिया है, ये भी ये नेगेटिव एरिया है, ये पॉजिटिव एरिया है ना, लाइन से ऊपर लाइन से नीचे वाला नेगेटिव एरिया। डिस्टेंस में सबको ऐड करते हैं मींस 60 प्लस 20 प्लस 20 इट इज 100 मीटर डिस्टेंस कैलकुलेट करना। और डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव, तो क्या करेंगे प्लस 60 फिर -20 फिर +20, ये दोनों कैंसिल हो जाए कितना बचेगा 60 मीटर, है ना। when the question will talk about distance then only magnitude of the area will be added, na? Without considering positivity and negativity. If the question is talking about displacement, we must consider the positive area and negative area. Means we must consider the sign to calculate the net area. Okay, you know very well area under velocity time curve will be the distance, sorry, displacement. Okay. Okay, open your NCERT. Open your NCERT. In the exercise, (3.1) exercise 3.1, in which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? Approximately a point object, ना देखो लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में a railway carriage moving without jerks between two stations. दो स्टेशन के बीच में अगर रेलवे मूव कर रही है तो ये क्या होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा। दो स्टेशन की डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी, है ना, और जो कैरिज की जो लेंथ होगी वो काफी कम होगी। दैट मींस द कैरिज कैन बी treated as a point object. Next, a monkey sitting on the top of a man cycling smoothly on a circular track. ठीक है ना, वो डिपेंड करता है अगर साइकिल एकदम छोटे से साइकिल सर्कल में कवर अगर नहीं कर रही है ना, थोड़ा सा बड़ा अगर एरिया ले रही है तो उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में मंकी की जो साइज होगी वो छोटी होगी, इसलिए मंकी कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। Second, sorry, third, a spinning cricket ball
that turns sharply on hitting the ground. ना इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं क्योंकि जिस जिस कर्व पे ये टर्न कर रहा है उसकी लेंथ और जो बॉल है उसकी लेंथ काफी छोटी है और जो साइज जो जिस जिस उससे वो कर्व में मूव कर रहा है उसकी जो रेडियस है वो काफी ज्यादा है. थर्ड वन, tumbling a beaker that has slipped off the edge of a table. अगर बीकर की बात करें तो बीकर की साइज और टेबल की साइज, टेबल की हाइट, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बीकर की साइज है ना बहुत ज्यादा छोटी नहीं होगी टेबल की हाइट के कंपैरिजन में. है ना मैं बताया था ना कि 70-80 टाइम्स का अगर ऐसा डिफरेंस हो तो हम छोटा और बड़ा कह सकते हैं, तो इसलिए इसमें ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा. सेकेंड सेकेंड जो है उसमें ग्राफ बनाया हुआ है 3.2 में एक ग्राफ बनाया हुआ है. ग्राफ थोड़ा सा प्रिंट हो सकता है किसी किसी बुक में, एनसीईआरटी ही में कोई कोई बुक है जो प्रिंटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, तो ग्राफ को पहले सही कर लेना. ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है ना. ये दोनों लाइन एक साथ होनी चाहिए ऐसे, तभी जाके सही होगा. ये दोनों लाइन मैंने पीछे छोड़ दिया ऐसा, यही छोड़ दिया, लेकिन इसको बढ़ा के बराबर कर लेना है ना. यहाँ से ये पी है और यहाँ से ये क्या है, ये क्यू है ना. ये बी का है और ये ठीक है, और यहाँ पे टाइम और यहाँ पे पोजीशन है. देखना ध्यान से. सेम उस तरह का ग्राफ अभी हम लोग कर चुके हैं. क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले. रीड द क्वेश्चन. लिखा है द पोजीशन टाइम यानी एक्सटी ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल टू देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली. यानी स्कूल से बच्चे अपने घर जाते हैं, अपने अपने घर, आर शोन इन द फिगर. चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स below. क्या कह रहे हैं देखना. ए, इसको कैसे पढ़ेंगे, पहला वाला जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ए वाला. इसमें लिखा ए बाई बी, या तो ए पढ़ेंगे या बी पढ़ेंगे. अगर ए पढ़ते हैं तो लिखा हुआ ए लाइव क्लोजर टू द स्कूल देन बी, है ना. अगर फर्स्ट वाले में ए पढ़ते हैं तो लास्ट में जो लाइन के लास्ट में आ रहा है उसको पहले वाला ही पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे. तो ऐसे पढ़ेंगे ए लाइव क्लोजर टू द स्कूल देन बी, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पढ़ सकते हैं बी लाइव क्लोजर टू द स्कूल देन ए. क्लियर होगी बात. पढ़ने का तरीका बोलो, यस और नो. पढ़ने का तरीका समझ में आया. पढ़ेंगे कैसे, सॉल्यूशन तो बात की बात है, पहले क्वेश्चन को समझो. ठीक. तो इसमें देखना, तो ए लाइव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, या बी लाइव्स क्लोजर टू द स्कूल देन ए, है ना. डिस्टेंस किस कौन ज्यादा कवर कर रहा है, ए या बी वाला. देखोगे तो बी वाला जीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, डिस्टेंस इसकी जीरो से स्टार्ट होती है और यहाँ पर जाती है. यानी ये वाला यानी बी वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है. तो हम क्या बोलेंगे, ए लाइव क्लोजर, है ना. इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ए लाइव लाइव क्लोजर टू द स्कूल देन बी. क्लियर. सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन है ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी. कौन स्कूल से पहले, स्कूल को पहले छोड़ता है. देखो यहाँ
जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है वैसे ही हमारा पोजीशन चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और किसके लिए? ए के लिए। लेकिन बी के लिए क्या है, टाइम लैप्स हो रहा है, टाइम है ना, टाइम आगे जा रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, बट पोजीशन बी की चेंज नहीं हो रही है। यानी कि बी क्या कर रहा होगा, थोड़ी देर के लिए स्कूल में स्टे कर रहा होगा। क्लियर हो गया? तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। हाँ बिल्कुल सही है, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। ठीक है, इसको देखेंगे। सी, ए वॉक्स फास्टर देन बी। अब इसकी स्पीड किसकी ज्यादा है? बताओगे तुम लोग, बताओगे विच वन हैव मोर स्पीड, ए और बी? बी हैज मोर स्पीड। व्हाई? व्हाई बी हैज मोर स्पीड? हाँ, एंगल या हम स्लोप कह सकते हैं, स्लोप इज मोर फॉर बी। या टाइम एक्सिस से जो बी का जो स्लोप है वो ज्यादा है ना। अगर वैसे ना समझ में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, बी वाला ए के कंपैरिजन में डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, और ए वाला ज्यादा टाइम ले रहा है बी वाला कम। यानी बी वाला डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, टाइम भी कम ले रहा है ना। ओके, बी वाले का स्लोप ज्यादा है। कई तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। डी, ए एंड बी रीच होम एट द सेम डिफरेंट टाइम। सेम टाइम पे पहुंचते हैं या डिफरेंट टाइम पे? सेम टाइम पे पहुंचते हैं, क्योंकि आंसर में सेम दिया हुआ है और ग्राफ में थोड़ा सा गड़बड़ बनाया था, इसलिए उसको सही करना जरूरी है। सेम टाइम पे यानी कि दोनों ए और बी दोनों सेम टाइम पे अपने घर पहुंचते हैं, टाइमिंग दोनों का सेम। लास्ट वन, ए बी ओवरटेक्स बी ए ऑन रोड। यानी ए बी को ओवरटेक कब करता है? ए ओवरटेक्स बी ऑन द रोड ट्वाइस और वंस। एक ही बार कर रहा है यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, वंस कर रहा है। और अगर आपसे पूछता है, जैसा कि हमने पहले कर चुके हैं, कि व्हेन एंड वेयर, वेयर पूछता है तो आपको ये डिस्टेंस बता देनी है, ये वाली। और अगर व्हेन पूछता है तो आप ये वाली डिस्टेंस बता सकते हैं। ऐसे इसमें कोई पॉइंट्स नहीं दिए ये तो और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.3, a woman starts from her home at 9 a.m., walks with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। यानी पैदल चलती है ना। जो पैदल वाली स्पीड होती है, जब आप ऑन फुट चलते हो तो जो स्पीड होती है वो 4 to 6 किलोमीटर पर आवर, पर्सन टू पर्सन होती है। कोई बहुत तेज चलेगा तो 6 के आसपास चलेगा, 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। हर कोई थोड़ा स्लो चलेगा तो 4 किलोमीटर। तो जनरली एवरेज क्या जाता है? 5 किलोमीटर। यानी कि जो वुमेन है अपने ऑफिस के लिए निकल रही है, जा रही है, वुमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 a.m., वॉक्स विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस। अपने ऑफिस को जा रही है 2.5 किलोमीटर अवे। उसकी ऑफिस जो है 2.5 किलोमीटर दूर। स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 p.m., यानी 5 बजे तक अपने ऑफिस पे रुकती है। एंड रिटर्न्स होम बाई एन ऑटो with a speed of 25 kilometers per hour. Choose the suitable scale and plot the XT, means position time graph for her motion. आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है उसके मोशन के। देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ 9 o'clock मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 9 o'clock टाइमिंग की अगर हम बात करें
या आप थोड़ा सा दूर मान लो, दिस इज 9 AM। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी वो कितनी है, 2.5। तो मान लो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, ये वाली कितनी देगी, 2.5। अच्छा, 9 o'clock से चलती है और ये 25 किलोमीटर चलती है, तो टाइम कितना लेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो बता डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर, एंड द स्पीड इज व्हाट, 5। स्पीड इज 5 मीन्स 0.5 आवर मीन्स हाफ एन आवर, या 30 मिनट कह सकते हैं, है ना, 30 मिनट्स। ठीक है, देखो अब क्या कहेंगे कि 9, उसके बाद 10 11 12 नून हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 PM। अब बताओ ये कहाँ कब पहुंच जाती है, 9:30 पे, यानी कि 10 से और 9 के बीच, ये वाला पॉइंट, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरह, ऐसे 9 बजे चलती है, 9:30 बजे पहुंच जाती है वहां पे 2.5 किलोमीटर, तो ऐसे ग्राफ। ठीक है, अब स्टे करती है, मतलब टाइम जा रहा है लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, एज स्ट्रेट लाइन में। कहाँ तक बनेगा, अप टू अप टू 5 PM। उसके बाद वो 25 किलोमीटर पर आवर से वो रिटर्न हो जाए, यानी टाइम कितना लगेगा, 20, सॉरी, डिस्टेंस तो वही होगी 2.5, है ना, डिस्टेंस आपकी वही होगी 2.5, एंड स्पीड इज नाउ 25 मीन्स 0.1 आवर मीन्स 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 60 मीन्स 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट में वो घर चले जाते, यानी कि ये यहाँ से रिटर्न होती है, बहुत कम डिस्टेंस होती है इसके कंपेरिजन में, क्योंकि हाफ एन आवर है। तो यहाँ पे कितने कब आ जाएगी वो, ये वाला जो पॉइंट होगा, दैट विल बी 5:06। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ होगा और आपकी कैलकुलेशन सही होगी। नोट डाउन फास्ट। रिटर्न हो जाती है मतलब उसकी पोजीशन 0 हो जाती है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन 0 हो। हम्म,
डन, गुड, ठीक। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, करूंगा, मैं सब करूंगा, भाग थोड़ी रहा। रिलेटिव वेलोसिटी ना, बिल्कुल करूंगा। रिलेटिव वेलोसिटी भी करूंगा, मैं सब करूंगा, जो कहोगे वो करूंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा वेट करो। हाँ? कब क्या पढ़ाना है बताऊंगा। अगर मैं कहूँ कि हाँ चैप्टर फिनिश, ठीक है, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी छूट जाए तो कह देना कि सर ये भूल गए आप, ऐसे होगा नहीं ऐसा। ठीक है ना, पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा इसको, रिलेटिव वेलोसिटी। और यही लास्ट टॉपिक होगा। रिलेटिव वेलोसिटी कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा, दो चार पांच दस जो भी हो, यानी वन 1 to 2 और 3 लेक्चर्स और होंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाए, है ना। क्योंकि पीछे जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाने के बाद उसमें 1 से 2 लेक्चर और लूंगा, 5 7 10 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा ना। उसके बाद टेस्ट के लिए रेडी रहना तुम। ओके, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3.4। 3.4 में क्या लिखा हुआ है, ड्रंकार्ड, है ना, समझ रहे हो, ड्रंकार्ड। नहीं, यस सर, कुछ नहीं पाएंगे। क्या बात है, गर्ल्स ज्यादा समझ रही है, बॉयज। हाँ, ड्रंकार्ड मतलब जो पीता है। क्या पीता है ये तो नहीं पता, लेकिन बस पीने वाला। अ ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन, नैरो लेन, लेन मतलब पतला सा रास्ता है, नैरो लेन, टेक्स 5 steps फॉरवर्ड एंड 3 steps बैकवर्ड। है ना, जब पी लेते हैं तो मस्त हो जाते हैं ना एकदम। तो 5 स्टेप आगे जा रहा है, तो 3 स्टेप को, सॉरी 5 स्टेप को फॉरवर्ड यानी आगे जा रहा है, तो 3 स्टेप को पीछे आ जा रहा है, फिर 5 आगे चलता है, फिर 3 पीछे आ जा रहा है ना, एकदम मस्त है। फॉलोड again by 5 steps forward and 3 steps backward and so on, और ऐसे चलता है। आगे जाकर क्या कहता है, each step is 1 meter long and requires 1 second, यानी हर एक स्टेप जो है वो 1 मीटर का है और 1 सेकेंड लेता है। ठीक है, प्लॉट एक्सटी ग्राफ, यानी कि पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ हिज मोशन, डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज, graphically भी और otherwise, graphically and otherwise, how long the drunkard take takes to fall in a pit, hole है ना, उसमें गिर जाता है। How long the drunkard takes to fall in a pit 13 meters away from the start। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, टाइम और पोजीशन का कोऑर्डिनेट रहेगा तो आप ड्रॉ कर ही लोगे, कोई दिक्कत है। कोऑर्डिनेट और टाइम और पोजीशन का हम देखते हैं ना? जल्दी देख लो इसको। अगर मैं टाइम और पोजीशन की बात करूं, 0 टाइम पे 0 पोजीशन, कोई दिक्कत। नो, टाइम को 5 सेकेंड लिया तो 5 मीटर आगे गया पहली बार, यहाँ देख लो 5 मीटर वो आगे गया, फिर वो क्या करेगा, 3 मीटर पीछे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइम तो बढ़ा ना, टाइम कितना हो जाएगा, बोलो।
3 मीटर पीछे है तो टाइम कितना हुआ, 8 हो गया, बढ़ गए। लेकिन ये पोजीशन क्या हुई, 3 कम हो गई, कितनी हुई, कुछ समझ आ रही बात। नेक्स्ट, अब पीछे आ गया तो अब ये 5 मीटर आगे जाएगा, यानी इसमें 5 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 13, है ना। अब इसमें भी 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक, अब फिर ये 3 मीटर पीछे आएगा, यानी कि 13 में 3 ऐड कर देंगे तो 16, और 7 में 3 माइनस करेंगे, पीछे आ रहा है ना, तो 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसी तरीके से अब फिर ये 5 मीटर आगे जाएगा, तो 16 और 5 21, और इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर अगेन 3 इसमें ऐड होगा तो 23, इसमें 3 माइनस हो जाएगा तो 6, फिर 5 ऐड हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। एक मिनट, 21 24 हो जाएगा ना, 3 ऐड होगा, 24 है, 6 हो गया, और 4 में 5 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, हाँ ठीक। और ये 5 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट जो आएगा 29, है ना। और 29 में हम 3 ऐड कर देंगे फिर से, तो 32, और इस पर 3 माइनस हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगले स्टेप में 5 ऐड हो जाएगा तो ये 37 हो जाएगा, और 5 13 हो जाएगा ना। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 13 तो कवर होगी, फिर ऊपर जाके गिर जाएगा, देख लो। डिस्टेंस जो है वो 13 हो गई, डिस्टेंस हमारे 13 हो गई, फीट में चला जाएगा, देखो जैसे कि लिखा हुआ है 13 मीटर आ गई। तो 13 मीटर तक कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 37 सेकेंड्स। तो आप चाहो तो ग्राफ बना के प्लॉट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स लेके आपको सॉल्व करना आता ही, चाहो तो इसको इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं, और कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, इस पे बेस्ड और भी सारे क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चंस को करना, कोई डाउट हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, या फिर आप लाइव क्लास में प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि क्वेश्चन सेंड करोगे तो रिप्रेजेंट करेंगे, सारे क्वेश्चन बच्चे देखेंगे, मैं पढ़ूंगा, है ना। वैसे दोगे तो मैं खुद ही लिखवा दूंगा बच्चों, नंबर तो दिया हो कई बार, 9236123531, एक लिमिट में, यानी कि पूरा बुक उठा के भेज ना, एक क्वेश्चन एक दिन में, एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं भेजेगा कोई, ओनली 1 क्वेश्चन 1 पर्सन। 20 20 क्वेश्चन भेजोगे तो कितना पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आज यही तक रहने देते हैं, अटेंडेंस लगा लो अपनी, you can write present sir, and after writing present sir you may leave the class. After writing present sir you may leave the class.
लीव द क्लास,